Very good afternoon to all of you, and it's a great pleasure to be associated with VSPM and Lata Mangeshkar Hospital, VSPM Dental College and Lata Mangeshkar Hospital, and the illustrious Dean of this college, Usha Radke Madam, my good friend and Vice Dean, Dr. Ram Krishna Shenoy, who is also coordinating this session, and the moderator of the station, a very senior eminent dental surgeon of Nagpur of Central India, Dr. Anup Garg sir, and all the eminent doctors, dental surgeons, and persons related to healthcare industry, and my dear friends. It's unique. It's indeed a pleasure to get associated with the healthcare for the first time regarding this MSME. So far, whatever webinars I have done on MSME, on industries, on package scheme of incentives, on subsidies, on bank finance, in the last 2 months, about 30 odd webinars I have addressed, and it were all on the CA forum or other professional forum or on the industrial body or industrial organization, chamber of commerce. But this is for the first time that healthcare industry, and especially the dental uh, association, the dental staff of this VSPM has taken initiative in organizing and knowing what exactly is the new definition of MSME and what is in store for in MSME for the doctors. So let us move to the topic. We are passing through a very difficult phase as of now, and pandemic 19 has become now very, you can say, challenging to tackle that pandemic 19. Our healthcare industry is working to find the vaccine and the other uh, curable medicines for this pandemic 19, but hopefully we'll get good news very soon, and we'll be back to our work, to our normal life with renewed vigor. That is what I can feel. I can you can say I'm confident that we'll bounce back. This lines की चाह रखने वाले कभी मंजिल को देखते नहीं, बढ़कर उसे थाम लिया करते हैं, और जिनके हाथों में होती है वक्त की कलम, वो अपनी तकदीर खुद लिख दिया करते हैं. We will write our own destiny again, sure for mankind. This phase will also go. ये वक्त भी गुजर जाएगा, and we will soon have our early days or normal days or normal life will begin very soon. That is the thing I can say before starting with my topic, my presentation. And let us start with the presentation, as it is a very exhaustive one. MSME, as you all know, is micro, small and medium enterprises. So I'll just share my screen, just a moment. Sir, is the screen visible? Yes. Yeah. Thank you, sir. Yes. And I'd like to dedicate my presentation to my father, Dr. M.M. Shah, who was the professor of anatomy in GMC for last 35 years, and he died in 2006, but still a lot of people remember him. Whenever I go into medical fraternity circles, he is remembered by most of the doctors who were the students of him, and he was in GMC for 35 years. And I think Dr. Anup Garg was also associated with my father for a long time, and he was very close to my father. And I would like to dedicate this presentation, because this being the healthcare presentation for healthcare, I would like to dedicate in his memory this today's my session to him. So this is the thing, new definition of MSME, its impact and interpretation,
and MSME for healthcare sector, including dental services and its benefits. So, what exactly is MSME? MSME के बारे में काफी लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी, और जैसे ये पैंडेमिक आया और गवर्नमेंट ने एमएसएमई के बारे में चर्चा, एमएसएमई के बारे में न्यूज, मीडिया ने एमएसएमई के बारे में जो दिया, तो सभी लोगों में एकदम जागरूकता आ गई. Everybody got awakened to what exactly this MSME, and everybody was curious to know whether a particular sector, a particular you can say field comes under the MSME or not. Previously क्या था कि only manufacturing industry को एक लोगों का feeling था कि MSME means the manufacturing sector. If your unit is a manufacturing, and then you can qualify for MSME according to the definition if you are eligible as per the criteria. But now the things have changed. MSME Act was formed in 2006 and it came into effect from 2nd October 2006. So this is a 14 years old act, and it aims at facilitating the promotion and development of small and medium enterprises. So what exactly are the small and medium enterprises? We'll see in my slides, in the succeeding slides. But exactly this small and medium enterprises development bill was formed, and under which this act was formed 14 years back. और 14 साल से इस एक्ट के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं आया. सिर्फ अभी जो बदलाव आया, we are very much thankful to our own, the visionary, the dynamic MSME minister from our own city, नितिन जी गडकरी, कि उन्होंने ये बदलाव लाने के लिए पहल की, being the MSME minister. और उनके बाद हमने काफी बार चर्चा की कि सर ये 14 years old act है. Now the situation has changed, the phenomena has changed, the techniques have changed, the business techniques are changed, innovations are there, it needs to get revamped. So first thing it did was to redefine the MSME, change in the definition of MSME. तो उन्होंने जो लाया, और उसके बाद जो एक लोगों में जागरूकता और बढ़ गई कि सर MSME में हम लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे. आज एक ट्रेडर मुझे फोन करके पूछता है कि MSME में हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे. डॉक्टर्स क्यूरियस है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, प्रोफेशनल सर्विसेज वाले जो लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो ऑफ कोर्स पहले से आता था, बट क्या क्या इस MSME एक्ट के अंदर में आता है और कौन से सेक्टर इसमें क्वालिफाई करते हैं, ये हम देखेंगे. तो व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस. कि एंटरप्राइज है वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, ये MSME एक्ट के अंदर में डिफाइन किया गया है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया द एंटरप्राइजेस आर क्लासिफाइड. Then it gives advisory committees to support MSMEs, then measures for promotion, development and enhancement of MSMEs. There are schemes to control delayed payment to MSMEs. So these are all the salient feature of the act. And what does the enterprise mean? देखिए, ध्यान से देखिए, an industrial undertaking or a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in manufacture or production of goods. This is the first part. Engaged in manufacture or production of goods. And second is engaged in providing or rendering of any service or services. Thus, broadly, MSME are classified into two categories. One is manufacturing enterprises and second is service enterprises. So, ये दो broad categories है. So, as of now, traders सिर्फ only trading है, trading firm है. अगर किराना ट्रेडर है, होलसेल ग्रेन मर्चेंट है, who is not into producing of the goods, neither he is giving any services, he is only trading his goods, he is only supplying the material, he is only providing the raw material without any change in this form or value addition services, then it will not qualify under MSME. MSME में दो चीज महत्वपूर्ण है, या तो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए जिससे कुछ उत्पादन हो पाए, जिससे कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स यानी प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और सर्विसेज
सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग सर्विसेज वाले, ही कैन क्वालिफाई एज ए सर्विस सेक्टर एमएसएमई। अगर ये कार डीलर्स है, उनका जो सर्विस स्टेशन जो है उनका रहेगा, इट कैन क्वालिफाई फॉर एमएसएमई। उसी प्रकार प्रोफेशनल सर्विसेज है, इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कैन क्वालिफाई एज एमएसएमई, एंड इवन नाउ the healthcare industry, because they are providing medical services, they can come under this MSME definition, MSME registration. They can take the MSME registration very well. So please keep this in mind. सबसे पहला जो डाउट है, कई मेरे फ्रेंड्स है जो डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, उनके कई बार मुझे इंक्वायरीज आई अभी पिछले 15-20 दिनों में कि सर हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आप मेडिकल शायद नेटवर्क चले गया सर उनका। नहीं, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग चले गया। हेलो सर, वॉल्यूम या आ रहा आवाज अभी? हाँ आ रहा है। आपको स्क्रीन वापस शेयर करना पड़ेगा। या ओके नाउ? हाँ। So MSME and profession of doctors. The basic question which underlies whether doctors can take the registration under MSME as per the MSME Act 2006. The answer is yes, as I have explained you in my previous slide. Yes, MSME covers manufacturing as well as service sector, and hence doctors can take the benefit of MSME registration. तो ये आप सबसे पहला जो मुद्दा था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, whether you qualify under MSME or not. Yes, you qualify. Now what is the change in the definition? What was the existing MSME classification definition? Means before 30th June 2020, 30 जून तक ये ऊपर का जो टेबल है वो एग्जिस्टिंग MSME क्लासिफिकेशन लिखा है, वो 30 जून तक खत्म हो गया, उसका जो क्राइटेरिया था। मींस ये डेफिनेशन इज नाउ चेंज, और रिवाइज डेफिनेशन जो है नीचे दैट हैज कम, वी विल गो स्ट्रेट इनटू द रिवाइज डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस दोनों को मर्ज कर दिया। पहले मैन्युफैक्चरिंग अलग था, सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए क्राइटेरिया अलग था। ऊपर के टेबल में देखो, माइक्रो अगर है तो इन्वेस्टमेंट लाख के अंदर होना चाहिए था, है तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख के माइक्रो MSME कहलाता है, एंटरप्राइज 5 करोड़। नाउ देयर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन, नाउ इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट। आप लोग सब डेंटल से ज्यादातर यहाँ लोग उपस्थित है। डेंटल फ्रेटर्निटी में जो डेंटल क्लिनिक्स होते हैं उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स आपके लगे हुए हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे है और टर्नओवर मींस receipts are less than 5 crores, then it will be termed as micro MSME unit, micro unit under MSME Act. इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर और टर्नओवर 5 करोड़। अगर स्मॉल यूनिट में क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर एंड टर्नओवर 50 करोड़ के, और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के अंदर और टर्नओवर 250 करोड़ के।
So turnover with respect to exports will not be counted in the limits. This is basically for मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यू कैन से कि जहाँ पे एक्सपोर्ट्स है तो वो टर्नओवर में उसके ग्रॉस सेल्स में नहीं माना जाएगा, उसको एक्सक्लूड करके उसका टर्नओवर देखा जाएगा एंड देन इट विल बी क्लासिफाइड वेदर इट इज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम. बट इन आवर सर्विस एंटरप्राइजेस केस जनरली एक्सपोर्ट सर्विसेज बहुत कम होती है डेंटल सर्जन में, फिर भी अगर है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा. और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट शुड बी लेस देन 1 crore. सिर्फ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट बोला गया है. ध्यान रखिए आपका प्रीमाइसेस जो है डेंटल क्लिनिक का प्रीमाइसेस अगर है वो नहीं आएगा इसमें. अगर कोई लैंड पे आपकी डेंटल हॉस्पिटल खड़ी है वो लैंड नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग नहीं आएगी, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी आएगी, फर्नीचर नहीं आएगा इसमें. इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, उसे ही हमें देखना होगा और उसी प्रकार से हमें उसको क्लासिफाई करना होगा. नाउ फ्रॉम 1st July 2020 उद्यम रजिस्ट्रेशन हैज बीन मेड कंपलसरी. अभी तक उद्योग आधार मेमोरेंडम बनता था, यूएएम कहते थे उसे, बिफोर 1st July. नाउ फ्रॉम 1st July 2020, यानी ये डॉक्टर्स डे भी है, आपका डे है, सीए का भी डे है, जीएसटी का भी डे है और काफी सारा इसमें, और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी डे इस दिन से शुरू हो गया. नाउ दे हैव रिप्लेस्ड उद्योग आधार मेमोरेंडम विद उद्यम. उद्यम में सब आ जाते हैं. पहले उद्योग में ऐसा था कि उद्योग में ऐसा सोचते थे लोग बिजनेस, लेकिन उद्यम यानी एंटरप्राइज. तो एंटरप्राइज में डेंटल सर्विसेज की भी एंटरप्राइज आ सकती है, मेडिकल सर्विसेज की भी आती है, हॉस्पिटल भी आ सकती है, एवरीथिंग कैन क्वालिफाई. तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इसका नाम कर दिया गया है. और जिनके पास पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम था उन्हें पीएम पार्ट 2 यानी उनको इसमें फिर से उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसकी डेट उन्होंने दी है, लास्ट डेट 31 March 2021. तो ऑलरेडी who are holding उद्योग आधार मेमोरेंडम under the old definition will have to re-register them compulsory under this उद्यम registration before 31 March 2021. तब तक वो पुराना उनका उद्योग आधार मेमोरेंडम वैलिड रहेगा. And all enterprises till June 33rd shall be reclassified in accordance with the new notification. यानी उनका reclassification हो जाएगा according to the criteria जो हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. और अगर आपकी 4 क्लिनिक्स है लेकिन चारों के ओनर आप है तो आपका पैन एक ही है सबका. अगर एक पैन नंबर है तो चारों यूनिट्स का इक्विपमेंट्स आपका देख के आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया तय हो. अगर 4 डिफरेंट ओनर्स के यूनिट है और फिर वो एक कंपनी में आ रहे हैं तो चारों का अलग होगा. अगर पैन कॉमन है, अगर 3 जगह सेटअप है आपका, तीनों का इक्विपमेंट्स और प्लांट एंड मशीनरी काउंट होके आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसाइड हो. So keep this in mind. And now what they are doing, they are trying to get MOU, Memorandum of Understanding, who the MSME Ministry with the Income Tax Department, with the CBDT, to provide data from the income tax return which you have filed as of अभी लास्ट जो फाइल किया है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर फाइल अभी सभी का 31 March 19 का है. अभी करंट ईयर का काफी कम लोगों ने किया है. 31 March 19 का आपका पूरा डाटा, आपका आईटीआर जो है उसमें आपने कितना एसेट बताया, कितना आपकी रिसिप्ट बताया, वहां से कैच करेगा फॉर रजिस्टरिंग इन उद्यम. उद्यम में जब आप जाएंगे तो ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड आएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका नया फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको हाथ से डालना पड़ेगा whatever figures you have shown in your income tax return. अगर इनकम टैक्स रिटर्न में आपने एसेट्स नहीं दिखाए हैं तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स है, उसकी वैल्यू आज 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है. सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको वहाँ पे वो फिगर डालना पड़ेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करना. So investment in plant and machinery shall be on written down value matter, not on gross investment basis. उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ नई मशीन अगर लेते हैं तो उसकी इनवॉइस वैल्यू जो है लेस जीएसटी ये माइनस करके उसकी वैल्यू गिनी जाएगी. सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइजेस जैसे मैंने बताया न्यू एंटरप्राइजेस के लिए, और टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी एक्सक्लूडेड.
यानी ये जीएसटी शायद नहीं लगेगा, बट जीएसटी साइड से भी लिंक होगा और इनकम टैक्स साइड से भी लिंक होगा। तो जो लोग ये दोनों को वो टर्नओवर जीएसटी से कैच करेगा और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट इनकम टैक्स रिटर्न से कैच करेगा, जो आपने एसेट्स वहां पे फाइल किए प्लांट एंड मशीनरी। और आधार नंबर इज कंपल्सरी ऑफ द प्रोप्राइटर और द कर्ता और द एचयूएफ ऑफ योर फर्म फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से स्पेसिफाई किया है। इसमें सभी दी गई है जो प्लांट एंड मशीनरी में आएगी। जैसे मशीनरी और प्लांट मोल्ड्स अगर कुछ रहते हैं, आपके यहाँ भी मोल्ड्स रहते होंगे जिसमें डेंटल का कुछ आप टूथ का शेप देते होंगे, उसका मोल्ड्स होंगे। ये सब प्लांट एंड मशीनरी में आता है, अगर आप आता है। और उसी प्रकार स्पेसिफाइड लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, सोलर में लगाया है, वो भी आपको वहाँ पे इक्विपमेंट्स में और प्लांट एंड मशीनरी में क्वालिफाई होगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स नॉट कवर्ड में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जितना इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है आपके क्लिनिक में, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कोई पेटेंट है या ट्रेडमार्क है आपका, उसका जो आपका वैल्यू दिख रहा है बैलेंस शीट में, वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं होगा। आइटम्स नॉट कवर्ड, cost of pollution control devices, cost of research and development devices, cost of industrial safety devices, or as may be specified, any other cost as may be specified by notification. Now what are the steps for udyam registration? You can file it sitting at your clinic. आप कहीं कोई प्रोफेशनल सर्विस लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है पोर्टल, क्योंकि 1 जुलाई से शुरू हुआ तो थोड़ा समय लगेगा, कुछ उसमें लैक्यूनाज है या कहीं उसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट एज सून एज पॉसिबल। बट नाउ दिस इज द स्टेप, यू हैव टू गो ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल भी है और साथ में उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपको उसमें फॉर्म दिखेगा। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, जिसके हमारे गडकरी साहब मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर। वहां पे आप जाएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे, और न्यू एंटर, वहां पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME, और दूसरा ऑप्शन है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो अगर आपका नया है तो आपको न्यू एंटरप्रेन्योर्स वाले पे क्लिक करना है, उस आइकॉन पे क्लिक करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपका आधार नंबर आपको डालना है और आपके यूनिट का नाम डालना है, आपके जो भी ट्रेड नेम होगा क्लिनिक का वो डाल सकते हैं, या खुद का पर्सनल नाम से करते हैं तो पर्सनल नाम उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर जो है उसमें दिया गया है, उस पर OTP आएगा, OTP से आपको वैलिडेट करना पड़ेगा आपका आधार नंबर। उसके बाद सेकंड स्टेप में पैन वैलिडेशन आएगा, पैन नंबर डालना पड़ेगा आपको, और पैन वैलिडेशन के बाद आपको ये फॉर्म दिखेगा। दिस इज द मेन फॉर्म, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन है और आपके पूरा एड्रेस और ये कम्युनिकेशन डिटेल्स, प्लस आपके प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स के वैल्यू, ये सब पूछा है। मींस इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है उनका भी जनरेट नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि वी हैव एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि आपने फाइल किया है उद्योग आधार मेमोरेंडम, बट विल गेट बैक टू यू इन फ्यू डेज, क्योंकि उनका अभी वो CBDT और इससे अरेंजमेंट जो है MOU बात की है, वहां से वो क्योंकि एग्जिस्टिंग वालों के रिटर्न से वो लेने वाला है, और अगर जो न्यू है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन तुरंत मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, इतना मैंने सब कहानी बता दी आपको, और आप पूछेंगे कि सर इससे फायदा क्या है, इतना हम करा ले MSME तो मुझे क्या मिलने वाला है और मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो लीजिए आपके साथ
सामने मैं पेश कर रहा हूँ। जितने बेनिफिट्स मेरे ध्यान में आए, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे काफी लिया है, और एज ए एमएसएमई यूनिट भी अगर आपका है उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है। Practicing professionals who have already obtained the bank loan for setting up hospitals and purchase of machinery. Already आपका क्लिनिक सेटअप है और उसमें आपने कुछ लोन लिया है फॉर परचेस ऑफ मशीनरी या फॉर सेटिंग अप द यूनिट फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर और डेंटल चेयर्स, जो भी प्रकार का आपने लोन लिया है। सो अंडर द स्टिमुलस पैकेज अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ कितना था, 20 लाख करोड़ का कुछ तो भी था, वो उसमें जीरोस भी हमको काउंट करना पड़ता था। उसमें से ये 3 लाख करोड़ इस योजना में दिए है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इसे कहा गया है। और उसमें ये आपको ये देखना है कि आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन है तो आपको एडिशनल 20%, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो बैंक इज ऑफरिंग यू एडिशनल 20% बिकॉज यू क्वालिफाई अंडर एमएसएमई विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% to 8% में 48 मंथ्स के लिए अभी दे रहे हैं। सपोज आपने XYZ बैंक से कोई लोन लिया है, टर्म लोन, जिसका आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को 20 लाख रुपए था, तो आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा 7 to 8% पे 48 मंथ्स के लिए ये स्टिमुलस पैकेज के अंदर में सॉफ्ट लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, तो उस हिसाब से ये आपको टू come out of this pandemic COVID-19 situation आपको एक सपोर्ट के तौर पे स्टिमुलस पैकेज में दिया गया है because you are qualifying under MSME. And if you are a newly pass out professional, then want to set up a new hospital with purchase of machinery with maximum project cost up to 10 lakhs. 10 लाख तक का अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है डेंटल क्लिनिक सेटअप का, इनिशियली टू स्टार्ट विथ आई थिंक 10 लाख में आपका एक 2 चेयर का डेंटल क्लिनिक हो सकता है स्टार्ट। तो उसमें अगर आप CMEGP चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम में जाते हैं, ये एमएसएमई के लिए है सिर्फ। जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर, ही जस्ट फॉर्मुलेटेड दिस स्कीम, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें आपको विदाउट एनी कोलेटरल बैक फ्री लोन मिलेगा, एज वेल एज सब्सिडी भी मिलती है, बैक एंडेड सब्सिडी 15 to 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। विदर्भ रीजन में अगर आपने डाला है तो 20% है, और वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो वुमेन अगर डेंटिस्ट है तो 5% एक्स्ट्रा है वुमेन के लिए। SC ST है तो उसको भी 5% एक्स्ट्रा है, और अगर नॉर्मल केस है तो उसमें 20% है विदर्भ के लिए। मीन्स if your project cost is 10 lakhs, you can get a subsidy of ranging from 1,50,000 to 3,50,000 depending upon the location and the entrepreneur, whether is sole owner or is woman 100% woman undertaking or he qualifies under SC ST category, जो भी है ये उस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने सुविधा दी है। ये सब्सिडी ये है बिकॉज यू आर सेटिंग अप द यूनिट in the backward region, means Vidarbha comes under backward region as far as the industrial development is concerned. तो इसलिए ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम के अंदर में ये एक सब्सिडी भी दिया है, प्लस कोलेटरल फ्री लोन भी आपको मिलता है। और थर्ड सिचुएशन ये है कि इफ यू आर ए न्यूली पास आउट प्रोफेशनल or the existing practicing professional who wants to set up a new hospital or expansion of hospital with high tech advanced machinery, project cost about 10 lakhs. So if your project cost is below 10 lakhs, then you can go for the chief minister employment generation program scheme, and if your project is above 10 lakhs, then you can opt for this CGT MSE scheme, credit guarantees fund trust for micro and small enterprises. इसमें क्या होता है, इसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक आपको मिलता है। फ्रॉम एलिजिबल इंस्टीट्यूशन बोला है, इसमें प्राइवेट बैंक्स भी कुछ आ गई है, जिन्होंने जो भी इस क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के मेंबर है, जो भी बैंक्स, उन सब में ये स्कीम्स अवेलेबल है, CGT MSE स्कीम।
और अगर 2 लाख के भी ऊपर, 2 करोड़ के भी ऊपर जा रहा है, तो फिर 2 करोड़ के ऊपर जितना अमाउंट जा रहा है, मान लो 3 करोड़ जा रहा है, तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा हो रहा है, उसका 25% ही कोलेटरल देना है, मीन्स एडिशनल प्रॉपर्टी या एडिशनल सिक्योरिटी देना है, जो 25 लाख ही है। तो 3 करोड़ का लोन आपको सिर्फ 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे मिल रहा है एडिशनल। तो इज दिस नॉट बेनिफिट फॉर एमएसएमई? अगर आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेते हो और इसमें जाते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफी फर्क है। प्रायोरिटी सेक्टर में आता है एमएसएमई, तो नॉर्मल रेट अगर 10-11% होगा तो आपको 8, 8.25, 8.5% में पैसा मिलेगा, और वो 5 साल में रहेगा तो आपको टोटल 10-12% का फर्क पड़ेगा 5-6 साल में। तो एक अच्छा अमाउंट है। तो 2 करोड़ पे अगर 10-15% भी आपने बचा लिए 5 साल में, तो भी 30 लाख रुपए होता है। तो एमएसएमई के बेनिफिट्स ऐसे है कि दिखते नहीं है, लेकिन उसे खोजना पड़ता है और हमें उसे अवेल करना पड़ता है। तो ये उड़ान की स्कीम है क्रेडिट गारंटी सिडबी। सिडबी में भी आपको मिलता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये लोग भी फंडिंग करते हैं, डॉक्टर्स को भी करते हैं, डेंटल सर्जन्स को भी करते हैं, डेंटिस्ट को भी करते हैं, सभी को करते हैं। यू कैन गो टू सिडबी ऑल्सो और टू एनी अदर नेशनलाइज्ड और बैंक और इन द प्राइवेट बैंक इन विच दिस स्कीम इज अवेलेबल। तो जस्ट चेक इट आउट, ये बहुत अच्छी स्कीम है। आपको कोई आपका मकान, कोई बोलता है कि आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, आपका घर गिरवी रख दो, मॉर्गेज कर दो, in addition to you what you are purchasing, तो ये सब झंझट इसमें नहीं है। only you have to pay the guarantee fees of 1% to this credit guarantee fund trust। मतलब 2 करोड़ का आप लोन ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपको उसमें वन टाइम फीस भरना पड़ेगा, and you will get a collateral free loan। then other benefits क्या है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट। अब ये आपको कैसे लागू होगा? अभी जस्ट मैं कल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री की एक कैबिन में बैठा था नागपुर के और उद्योग भवन में, और उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। वो बोले कि साहब हम लोग तो पागल हो गए कि अब एमएसएमई में डॉक्टर्स लोगों ने भी इतनी केसेस डाली है फॉर डिलेड पेमेंट। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ आपका क्लिनिक का टाई अप मींस रजिस्टर्ड है, जैसे बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स का टाई अप होता है, WCL के एम्प्लॉइज के लिए होता है, या मॉइल के एम्प्लॉइज के लिए होता है, या कोई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप होता है, तो उनके एम्प्लॉइज का वो वहां पे कैशलेस हो जाता है और देन यू गेट अ रिएम्बर्समेंट फ्रॉम द कंपनी। तो आपको क्लेम डाल के वो कंपनी को बिलिंग करके वो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉइज आर पेइंग। ऐसे प्रकार का जो आपका टाई अप होता है, या इंश्योरेंस कंपनी का होता है जो कैशलेस जो है, लाइफ अपना ये मेडिक्लेम वाला, वो भी है। अगर उसमें अगर आपको 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द बिलिंग, आपको 45 दिन में पैसा नहीं मिला, देन यू हैव राइट टू फाइल अपील टू द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज टू गेट योर पेमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। डिलेड पेमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि आप एमएसएमई है, आपका पैसा 45 दिन के ऊपर कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर रोकता है तो ही इज लायबल टू पे यू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पीरियड। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है। तो ऐसे अब हॉस्पिटल्स ने उनके पास इतने क्लेम डाले हुए, सूट फाइल की है कि XYZ कंपनी में हमारा इतना पैसा रुका है, 45 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 45 दिन के ऊपर और 45 दिन हो गए, दे आर नॉट पेइंग अस, दे आर डिलेइंग आवर पेमेंट, प्लीज सी। तो वहां से ऑर्डर पास होता है, डिक्री। इट इज अ सब जुडिशियल अथॉरिटी, इट इज लाइक अ कोर्ट। उनको पावर्स दी है गवर्नमेंट ने टू पास ए डिक्री इन द फेवर। अगर आपका सब बरोबर है, आपका इनवॉइसिंग, आपका जो डेट है, उसका एक्सेप्टेंस, सर्विसेज प्रोवाइडेड आपका बराबर है, तो आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगा। अगर डिलेड होता है तो यू कैन क्लेम द इंटरेस्ट ऑल्सो। Then there is a trades receivable discounting system. This is basically for the debtor, जो आपकी उधारी होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इसके लिए है, जनरली सर्विस जो दूसरी टाइप की देते हैं, बट डॉक्टर्स में तो कैश का ही होता है सब जनरली। तो इसमें अगर आपके डेटर्स है तो यू कैन गो ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गेट योर फॉर्म रजिस्टर्ड देयर, एंड देन यू कैन डिस्काउंट योर डेटर्स ऑन दिस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पेटेंट है अगर आपका, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं वो काफी गोज इन लैक्स ऑफ रुपीज। इफ यू वांट एनीथिंग टू बी पेटेंटेड, देन
उसका जो एक्सपेंस है, you have to of course keep the records of the bills and all these things. You can get about 50% of the subsidy on this patent. अगर आपने कोई पेटेंट आपका रजिस्टर किया जिसमें 10 लाख रुपए लग गया, इंटरनेशनल पेटेंट्स में तो और ज्यादा लगते हैं, 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए तक मैंने देखा हुआ। लेकिन अगर आपका लोकल नेशनल लेवल का पेटेंट आप रजिस्टर कर रहे हैं और आपको 10 लाख का खर्चा आ गया, तो 5 लाख एमएसएमई मिनिस्ट्री आपको वापस देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ये आपको वापस मिलता है। उसका प्रॉपर आपको क्लेम फाइल करना पड़ता है, गोज टू द एमएसएमई मिनिस्ट्री, ऑनलाइन है सब, एंड यू विल गेट बैक 50%। उसी प्रकार देयर इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एमएसएमई। इंटरेस्ट रिलीफ विल बी 2% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो भी आपने लोन लिया है फॉर बिजनेस पर्पस, हाउसिंग लोन पे नहीं है, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर योर प्रोफेशनल पर्पस, फॉर सेटिंग अप ऑफ योर क्लिनिक और परचेस ऑफ सम डेंटल इक्विपमेंट्स, देन you will get a interest subvention, means reduction of 2% per annum which you have to claim. ये अभी आया 2019-18 में आया हुआ है ये, और इसमें आपको साल भर आपको पेमेंट करना है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन यू विल हैव टू क्लेम इंटरेस्ट सबवेंशन, मींस 2% पर एनम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट का। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर एक्सपोर्ट्स कुछ है तो एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है जहाँ पे आप 5% पर एनम से आपको पेमेंट मिलता है 31 मार्च 21 तक की स्कीम है। अगर कुछ एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हैं देन देयर इज अ क्रेडिट फैसिलिटेशन थ्रू बैंक। तो एनएसआईसी एक ऐसी संस्था है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नागपुर में भी इसका ऑफिस है। कैन गो टू एनएसआईसी। एनएसआईसी इज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, एमएसएमई के अंदर आती है, एंड इट अरेंजेस फॉर क्रेडिट सपोर्ट। मींस आप डायरेक्ट बैंक में नहीं जाना चाहते तो आप एनएसआईसी के पास आपको आपकी रिक्वायरमेंट जाके बताइए, एंड दे हैव अ टाई अप एमओयू विद सो मेनी नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर proposal, they will recommend your proposal to any nationalized or private bank for term loan or working capital or bank guarantee or whatever you want, whatever facilities you want. So NSIC is also one of the medium from which through which you can get the finances. Then there is a technology upgradation support. ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। अगर कोई इक्विपमेंट, ध्यान रखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही है, ये इट इज नॉट फॉर सर्विस सेक्टर। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मीन्स अगर आर्टिफिशियल टूथ बना रहे हैं, दांत आपके जो आर्टिफिशियल आते हैं, या वो अपने गोल्ड टूथ मैंने देखा है कहीं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कर रहा है डेंटल सर्विसेज में आपकी फर्म में, देन यू कैन गेट दिस 15% सब्सिडी। मीन्स 1 करोड़ रुपए तक का आपने प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लिया है तो आपको 15 लाख रुपए कैपिटल सब्सिडी एमएसएमई मिनिस्ट्री से वापस सब्सिडी के फॉर्म में, यू डोंट हैव टू रीपे इट बैक, इट इज अ सब्सिडी गिवन टू यू। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कोई योजना है, तो आप पूरा पहले से प्लानिंग कीजिए उसे, और कितने जो बेनिफिट्स है एमएसएमई की वो मैक्सिमम कैसे मिले उसको फ्रेमवर्क में बैठाना पड़ता है, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, अंडर फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स ऑफ एमएसएमई। ये इसके अंदर बैठा के आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कीजिए। तो दिस इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर कोई इनोवेटिव मशीन, आप इंपोर्टेड मशीन परचेस कर रहे हैं जो अभी जिससे आपकी टेक्नोलॉजी जो है डेंटल टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन हो रहा है, then you can claim this 15 lakhs or maximum is 15 lakhs। अगर आपने 50 लाख की मशीन ली है तो 15% मिलेगा, 7.5 लाख मिलेगा, और अगर 1 करोड़ 25 लाख की लिए है तो भी 15 लाख ही मिलेगा, मैक्सिमम इज 15 lakhs। आईएसओ के लिए अगर आपकी फर्म जा रही है तो उसकी भी फीस का रिएम्बर्समेंट है। आजकल कई जगह आईएसओ सर्टिफिकेशन भी लगता है फॉर टेंडर्स। अगर कुछ भरते हैं आप तो पूछते हैं कि वेदर योर यूनिट इज आईएसओ रजिस्टर्ड और नॉट, and if you want to get registered under ISO then जो भी certification expenses है maximum up to 75,000 they are reimbursing to you because you are MSME। credit rating support is also
गर्ग सर, हाँ जी। वो जब जुल्फेश भाई वापस ज्वाइन होते हैं देखते हैं अपन, बट ये क्या डू वी हैव टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? मैंने आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पे? Till now, dental services or medical services which we are practicing is not covered under GST. हाँ हाँ But if we are registering for MSME and if you are going for some manufacturing and other things, I think Mr. Julfesh Shah would enlighten about it. But till now, as of our practice, we are not covered for GST. We are not liable for GST. जुल्फेश भाई, डू वी हैव टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? अभी उन्होंने कंपलसरी किया है. We have put forth this issue with honorable MSME minister कि अगर डेंटल सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें जीएसटी कंपलसरी नहीं है, why should they register for GST? You have made GST compulsory for उद्यम registration. So there is some discussion going on to how to tackle this issue. For I say कि for healthcare they may liberalize this condition of GST registration. कि वो जीएसटी हेल्थ केयर अगर इसमें है या डेंटल में है तो उसको जीएसटी जिसमें लगता ही नहीं है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल ने कंपलसरी नहीं किया है, उसको कंपलसरी नहीं करेंगे. ओके, शुड आई कंटिन्यू सर? Yes, please. So this is the credit rating support. Then energy conservation support is there. अगर MSME रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो you will get a concession in your electricity bills, which is presently up to 1.25 rupees per unit. So that will make a considerable difference in your electricity bills. So ये भी एक जो ऐसे जो बेनिफिट्स है जो हमें दिखते नहीं है, थोड़ी मेहनत करके हम इसको अगर कर ले तो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट है. सिर्फ MSME का आपको कागज लगाना है कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर MSME and give one application to the electricity board and they will classify you under MSME and charge you accordingly, क्योंकि MSME को कंसेशनल रेट में मिलता है. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसमें PSL मींस if you are an MSME you are under the priority sector lending as per the RBI directions of all the banks. 7.5% of the funds are earmarked for you for financing the priority sector and MSME comes under priority sector. So इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फर्क पड़ता है और आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लेने की वजह से काफी कुछ रिलैक्सेशंस इसमें होते हैं. अब ये बार कोड और MSMEs अभी अगर आपको एप्लीकेबल वैसे इनको नहीं है डॉक्टर्स को, बट अगर कोई प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं उसका बार कोडिंग करते हैं तो उसका भी जो खर्चा आता है उसकी भी फीस वो लोग वापस देते हैं. देन रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम्स बाय NSIC. अंडर दिस स्कीम मैन्युफैक्चरिंग MSME हैविंग उद्योग आधार मेमोरेंडम गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि NSIC अगर NSIC के पास अगर आप जाएंगे तो अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल फाइनेंसिंग जो आपने बैंक से ऑलरेडी लिया, एडिशनल आपको रॉ मटेरियल असिस्टेंस भी NSIC देती है. सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, इश्यू ऑफ टेंडर सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. यानी कोई टेंडर भर रहे हैं और वो टेंडर की जो कई बार 5,000 10,000 रुपए के वो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है इसकी फीस होती है, वो MSME के लिए कई बार वेव हो जाती है. अर्नेस्ट मनी में काफी रिलैक्सेशन है तो आपको अर्नेस्ट मनी भरना होता है. एडवांटेज इज टेंडर पार्टिसिपेशन. अगर कोई टेंडर में आपने भरा हुआ है और अगर कोई लार्ज यूनिट और आपका दोनों भी सेम
पॉइंट पे खड़े हैं, दोनों को सेम मार्क्स है, then MSME will get preference as compared to the large unit or the mega companies. ये उसमें एक बेनिफिट है. then cloud सब्सिडी भी आजकल दे रहे हैं MSME को. First maximum subsidy of 1 lakh per unit will be disbursed over 2 years to micro and small. मीडियम को नहीं है, इसमें सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. तो ये आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज जो है उसमें भी ये इंक्लूड किया गया है. ये सबसे मेन है MSME यूनिट्स अगर वो है. और अगर आप कोई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ये भी माफ हो जाती है. मींस इफ यू आर परचेसिंग सम property from some space for your clinic. अब ये पहले मिलता था, अभी उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो ही देंगे, और सर्विस भी अगर है तो MIDC में अगर है तो देंगे. लेकिन अभी ये जो डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो आई थिंक ये सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन अभी इसमें भी आ जाएगा, एंड यू मे गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस. बहुत बड़ी चीज होती है. 1 करोड़ की अगर आप कोई जगह ले रहे हैं, 8% स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्चा होता है, तो 8 लाख रुपए बिकॉज यू आर होल्डिंग MSME सर्टिफिकेट इट गेट्स एग्जेम्प्टेड. बट अब फिलहाल जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो लोग मैन्युफैक्चरिंग को ही दे रहे हैं, और सर्विस सेंटर MIDC में है तो दे रहे हैं. बट अब ये जो चेंजेस हुआ है तो होपफुली ये इसको भी एक्सटेंड हो जाएगी ऐसा लगता है. Then there are various incentives if your unit is a manufacturing unit in the form of subsidies to various MSME for promotion of industrial development in the state. Package scheme of incentives जिसे कहते हैं, हर स्टेट की अलग-अलग पॉलिसी होती है कि आप हमारे स्टेट में अगर प्रोजेक्ट लगाओगे तो हम आपको इतनी सब्सिडी, इतने इंसेंटिव्स इस प्रकार से देंगे. तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है जनरली. बट अगर कोई हमारे में से भी कोई यूनिट डालना चाहता है तो फिर ये डिटेल में इसे देख सकते हैं स्टेट पॉलिसी के अंदर में जाके. देन MSME डॉक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज. अब क्या अपॉर्चुनिटीज है? मीन्स अपार्ट फ्रॉम योर डेंटल प्रैक्टिस which you are already rendering, what are the other opportunities available as far as the doctors are concerned, dental surgeons are concerned in the industrial arena? मुझे जो ध्यान आया, मैंने 3 सेक्टर में से डिवाइड किया हुआ है. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेंटल प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, देन फार्मा सेक्टर, और थर्ड इज रिसाइकलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. ये तीनों आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड फील्ड है. इसमें आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक यूनिट लगाना है MSME, चाहे माइक्रो हो, स्मॉल हो, और उसमें आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग नॉलेज अगर है, कोई मेडिकल डिवाइस आपको ध्यान में आया, और उसको आज आत्मनिर्भर की जो बात कही गई है, तो मेडिकल डिवाइसेस जो इंपोर्टेड और ज्यादा हो रहे हैं उसे यही बनाने के लिए इसे थ्रस्ट सेक्टर में गवर्नमेंट ने डाला हुआ है. देयर आर वेरियस इंसेंटिव्स आल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया. फार्मा के लिए भी काफी है, और डेंटल प्रोडक्ट्स भी उसी में आ जाएगी. तो ये 3 सेक्टर में हम लोग सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं. As you all know, 80% of medical equipment and devices used in India are imported, and most of them from US and China. ये 2 जगह से ज्यादा आते हैं, और अब हमें चाइना बंद करना है. ये संकल्प हम सबने अपने मन में तो ले ही लिया है कि चाइना बंद करना है. और चाइना का अभी तो टोटली बंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टोटली बंद है. काफी लोग स्टार्टअप है जो सिर्फ चाइना से डीलिंग करते थे, वो लोग बहुत ही टाइट पोजीशन में है. इस पर गवर्नमेंट ने टोटली बैन किया हुआ है, ना कुछ इंपोर्ट हो रहा, ना एक्सपोर्ट हो रहा. अब देखना यह है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या है. गवर्नमेंट का ये मकसद है कि आत्मनिर्भर, whatever you want, whatever is the requirement of a country, we should produce it in our country only. Made in India, origin should be in India. ये जो कंसेप्ट है उसमें आप देखिए इतने सारे हाई एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट
for imaging like CT, MRI, CR, X-ray, ultrasound, cancer diagnostic equipment, LINAC, then dental equipments, lab equipment like analyzer, microscope, OT और ICU बेड्स, ये सब जो इंपोर्ट होते थे अब यहाँ बनाने के लिए इसके बारे में विचार शुरू हो चुका है. And if we were to say what is the most important equipment device in terms of numbers purely based on usage, it would be OT and ICU equipment like patient monitors, ventilators, defibrillator, ये सब जो चीजें है, ECG, ये imported category followed by imaging equipment like ultrasound and X-rays. So not only are the equipment but also the respective spare parts are also important. ये हमें आदत अब बदलना होगा. So industry has a potential to grow from 5 to 10 times over the period of 10 years. अगर इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो 5x इसका ग्रोथ है मिनिमम 10 साल के अंदर. आप अगर करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में आपका ये जो है उसकी वर्थ जो है नेटवर्थ आपकी 5 करोड़ रुपए हो सकती है. इतना स्कोप इसके अंदर पोटेंशियल है आज, पर हमें कुछ सोच के इनोवेशन करके किस प्रकार से हम यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा. प्रोडक्शन एरियाज में एक थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है मैंने कि कंज्यूमर्स में जैसे कार्डियक कैथेटर है, स्टेंट्स है, उसके बाद नीडल सिरिंज है, सुचर स्ट्रिप्स, कार्ट्रिज, ये सब जो है डिपेंडेंसी इसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखिए 35% है और शेयर ऑफ द ओवरऑल मेडिकल डिवाइस मार्केट 16% है और ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट इज वेरी हाई. यानी ये कंज्यूमेबल का प्रोडक्शन अब इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से होगा क्योंकि अट्रैक्टिवनेस इज वेरी हाई. सेकंड आपका जो है डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल इम्प्लांट, आर्टिफिशियल टीथ, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखिए 60% है, 60% और शेयर ऑफ द ओवरऑल मेडिकल डिवाइस मार्केट 3% ही है. अट्रैक्टिवनेस क्या है, मीडियम रेंज में है, कर भी सकते हैं यहाँ से. अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगता है तो आप इंडिया में बनाएंगे, नहीं तो फिर जो भी जहाँ से भी है, चाइना नहीं तो और कहीं से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो ये सब चीजें हमको एनालाइज करना पड़ेगा. डायग्नोस्टिक में देखिए 52% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और शेयर उसका matter to invest in this segment is very high. Means X-ray tubes, USG, radiation delivery system, radiation generator unit, PET scan, ये सब MRI, ये सब इंडिया में अब ज्यादातर बनना शुरू हो जाएगी. We just have to wait. Over the next 2 years, you will get made in India all these machines. IV diagnostics है, lab reagent and accessories. एक हमारे क्लाइंट है Oriba इंडिया लिमिटेड, वो लैब रिएजेंट ये नागपुर में भी 150 करोड़ का यूनिट उन्होंने डाला हुआ बूटी बोरी में. And they are coming up with it 100% जापानीज कंपनी, जापानीज have invested the funds. उन्होंने लोकेशन सेटअप यहाँ पे नागपुर में किया हुआ है. तो इस प्रकार के काफी चीजें इसमें है. बाकी की भी कैटेगरीज में है वेरी हाई डिमांड है, जैसे ECG, EEG मशीन, एनेस्थेसिया इक्विपमेंट्स, लैप्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ये भी अब इंडिया में बनने के लिए अट्रैक्टिवनेस है. इसमें काफी थर्स्ट सेक्टर में लेने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस इज नाउ अंडर द थर्स्ट सेक्टर एरिया. डिफेंस जैसा है वैसे ये भी है. डिफेंस का भी अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो थर्स्ट एरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां पे पूरे इंसेंटिव्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर एक परमिशंस वगैरह आपको इजीली अवेलेबल होती है. पेशेंट एड्स जो है इसमें पेसमेकर, हियरिंग, इसमें भी %9 हमारी 50% शेयर जो मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट लिस्ट है. Then pharma sector, coming to the second, the pharma sector, it is the largest provider of generic drugs. Globally,
and Indian pharmaceutical sector industry supplies over 50% of global demand for various vaccines, 40% of generic demand in the US and 25% of all medicine in UK. बहुत बड़ा sector है pharma. And still it is to be explored at its full level, its full capacity. अभी भी काफी इसके अंदर में scope है. ऐसी कई चीजें हैं जो हम यहाँ नहीं बनाते हैं. अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज करें तो एक फार्मा सेक्टर में भी डॉक्टर्स का अच्छा योगदान हो सकता है. About 65% of the raw materials for Indian drug makers worth so much billion are being sourced from China. चाइना से इतना माल अभी भी आ रहा था, अब बंद है. लेकिन देखिए डिपेंडेंसी देखिए, अगर हमको यहाँ दवाई बनाना है, कैप्सूल बनाना है या कोई भी मेडिसिन बनाना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? 65% रॉ मटेरियल आ रहा है चाइना से. So considering this dependency, there is a great scope for increasing production in India. Make in India में क्या क्या है? Ease of doing business है, FDI की opportunities है, foreign direct investment is allowed under this category. Creation of employment है, SME IPO option है. अगर आपका MSME यूनिट है तो SME IPO option एक आता है, छोटा IPO. You can have initial public offering on the stock exchange. You can get your company listed. 50 करोड़ का, 40 करोड़ का छोटा SME IPO उसे कहते हैं, वो आप लोग ला सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस है. गवर्नमेंट हैज गिवन द सब्सिडी स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर. क्लस्टर बनाने के लिए काफी जोर है. गवर्नमेंट का क्लस्टर बनाने के लिए काफी जोर है. क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है. अगर आप क्लस्टर बनाना चाहते हैं तो आजू बाजू में आपके 10 डेंटल क्लिनिक रहेंगे, बीच में क्लस्टर का कॉमन फैसिलिटी सेंटर रहेगा. जो अदरवाइज इंडिविजुअल लेवल पे आप इतनी कॉस्टली मशीन्स और स्टेट ऑफ द आर्ट लैब आप नहीं बना पाते, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में वो रहेगा. इसमें 85% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. मीन्स आप क्लस्टर के लिए एक जॉइंट वेंचर या एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बना सकते हैं, 10 डेंटिस्ट मिलके, और उसके अंदर आप अगर 10 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, आप सबने 20-20 लाख रुपए डाले, 2 करोड़ रुपए आपका शेयर रहेगा. 18 करोड़ या 17 करोड़ जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा. कुछ शेयर उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है. जो हाइब्रिड रहता है, जो क्लस्टर, उसमें दोनों का शेयर रहता है. तो मेजर पार्ट इज फाइनेंस बाय गवर्नमेंट. ओनली लैंड एंड बिल्डिंग यू हैव टू कंप्लीट. स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी अंदर के इक्विपमेंट के लिए पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है इन दिस क्लस्टर. तो ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है इफ यू वांट टू थिंक समथिंग बिग. बट अब आपको सिटी के अंदर इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी, क्या कॉस्ट मिलेगी, ये भी आपको देखना पड़ेगा. बाहर आपको मिल सकती है. आप अगर उपलवाड़ी की तरफ जाएंगे कामठी रोड पे, तो वहां पे गारमेंट का क्लस्टर इतना अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा गारमेंट क्लस्टर बना हुआ है. गडकरी साहब ने उसमें पहल की थी और अब अच्छा चल रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हर चीज होती है वहां पे. 30-40 यूनिट्स है छोटे छोटे ये टेक्सटाइल के, और उनका जो एडिशनल वर्क है, वैल्यू एडिशन वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, वो प्रिंटिंग है, मॉडर्नाइज प्रिंटिंग है, उस सब का मशीन लगा हुआ है कॉमन फैसिलिटी सेंटर. तो हर एक यूनिट का माल वहाँ रोटेशन से जाता है. वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहाँ माल जाता है और वहाँ पे आपको सर्विसेज मिलता है, नॉमिनल चार्जेस. मीन्स अगर वो 15-20 करोड़ की मशीन अगर एक ही आदमी लगाना चाहे तो इट इज नॉट फिजिबल एंड पॉसिबल हो. सो दिस इज अ क्लस्टर कंसेप्ट कि साथ में आओ, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा, इसका फायदा सभी को होगा. अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है तो बाहर के लोग भी आके वहां पे उस सर्विसेज का यूज एट दैट चार्जेस कर सकते हैं. देन देयर इज अ प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी फॉर promoting domestic manufacturing of medical devices with financial implications of 3,420 crores. The time period is 2021 to 24-25 तक है. प्रोडक्शन जितना हो रहा है उससे लिंक सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है मेडिकल डिवाइसेस. स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, आपको सब्सिडी का है, 35% ऑफ द सब्सिडी आपको मिलेगी. कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बिकॉज यू आर MSME. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, फाइनेंस एट प्रायोरिटी. अगर आप MSME है, MIDC में लैंड आपको प्रायोरिटी पे मिलेगी. SME IPO आप निकाल सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर आपके अंदर फंड रेज कर सकते हैं, फंडिंग डाल सकते हैं. और मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, इसे
सार्थक कर सकते हैं. Maharashtra, as per the new policy, has notified the medical device industry as the thrust area for production purpose. So these are all the benefits. Delayed payment monitoring मैंने आपको ऑलरेडी बताया. अब बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है? अभी ये आप हमारे यहाँ पूरी गाड़ी आती है और लेके जाती है, तो जो मेडिकल वेस्ट है उसके लिए सेपरेट गाड़ी आती है, और जो हमारे घर में आती है उसके लिए कचरा उठाने वाली वो सेपरेट है. तो विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज pertaining thereto or in the production of testing of biologicals and including other categories. तो ये सब जो है it comes under biomedical waste. There is a good scope available to work in biomedical waste. Waste management is also covered under Startup India scheme. Startup में भी इसे डाला गया है, क्योंकि अब वो इस वेस्ट से भी बिजली बनाने की बात कहते हैं. ये वेस्ट is the raw material for production of electricity, production of power. तो ये सब चीजें है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आती है, और इसके अंदर में काफी इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. So above is just an indicative list. There are various other areas where the professional can start their work in and able to grow not only the profession but also the industrial area of the country. So India is one of the big consumer. However, there is a good scope available to become the manufacturer also. Profession of doctors has the extra advantage and they are the masters in तो ये सब बेनिफिट्स है एमएसएमई के, और इसे मैंने कोरिलेट करना चाहा विद दी मेडिकल हेल्थ केयर, डेंटल हेल्थ केयर. इसके साथ इसे कोरिलेट करके उसमें क्या बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, एक इंडिकेटिव प्रेजेंटेशन, एक इंडिकेटिव लिस्ट समरी में मैंने आपको बना के दिया हुआ है. तो this is all I can say about the MSME. Presently we are passing through a very difficult phase, but we hope to come back soon with renewed energy, re-energized vigor, and लौट आएगी खुशियाँ. अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल के चलो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है. तो ये इम्तिहान है हमारा, चल रहा है, बट ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये हमें आशा है. और इसी आशा के साथ आप सबके लिए यही दुआ करते हैं कि जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे, चेहरे पे आपके सदैव मुस्कान रहे. देते हैं यही दुआ दिल से हमेशा आपको, आपकी जिंदगी में सदा खुशियों की बहार रहे. धन्यवाद. मैं सीए जुल्फेश शाह आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फॉर योर पेशेंट हियरिंग. माय ईमेल आईडी एंड नंबर इज देयर. यू कैन contact me later also if you have any query or doubt on my email. You can just put a line and I can answer it.